Good morning students, welcome in K1 digital classes. In last lecture we were discussing about structure of OM and mechanism of menstrual cycle, in short MC, and today we shall discuss about process of fertilization. So today's topic is fertilization. Okay, so today's topic is fertilization. What is fertilization? Fertilization is the process of fusion of male gamete with female gamete. ओके, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ जो फ्यूजन का प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी. फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? सिनगैमी भी बोलते हैं फर्टिलाइजेशन को. ओके, देन आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन अकर इन द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल इज एम्पुला इस्थमस जंक्शन. जो साइट रहता है फर्टिलाइजेशन का, जैसे आपको बताया था, वो फर्टिलाइजेशन का साइट होता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन रहता है जो साइट है फर्टिलाइजेशन का. ओके, देन फर्टिलाइजेशन अकर इन डिफरेंट स्टेप्स. फर्टिलाइजेशन की कुछ स्टेप्स होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ fusion of male gamete means sperm. The process of fusion of male gamete with female gamete or female gamete means ovum or egg. Female gamete means ovum or egg is known as fertilization. Is known as fertilization. Next point. Fertilization is also known as syngamy. Fertilization is also known as syngamy. Fertilization is also known as syngamy. Okay, after this, next point. The process of fertilization occur in female at ampulla isthmus junction. Okay, so site of fertilization is the ampulla isthmus junction. Okay, after this, fertilization occur in different following steps. There are some steps which helps in fertilization. First step is arrival of sperm. Okay, first step is arrival of sperm. Okay, there are following steps of fertilization. First step is arrival of sperm. First step is arrival of sperm. फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं. फर्स्ट स्टेप मीन्स अराइवल ऑफ स्पर्म. इस अराइवल ऑफ स्पर्म में होता क्या है? फर्स्ट स्टेप इज अराइवल ऑफ स्पर्म. इन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल पार्टनर with the help of penis release the sperm in vagina of female. Okay, then these sperms move in
female reproductive tract and reach in uterus then in oviduct with self efforts and with the uterus efforts। होता क्या है कि जो मेल पार्टनर है वो मेल पार्टनर पेनिस की हेल्प से इंटरकोर्स की प्रोसेस के टाइम स्पर्म जो है सीमेन की फॉर्म में वो फीमेल की वेजाइना में इंजेक्ट कर देता है। जैसे फीमेल की वेजाइना में इंजेक्ट होते हैं सर्विक्स के नियर, फीमेल की वेजाइना में सर्विक्स के नियर जो है ये क्या करेगा, जो मेल पार्टनर है वो स्पर्म को इंजेक्ट कर देगा सीमेन की फॉर्म में। ये जो स्पर्म है फिर मूव करते हैं और स्पर्म के मूवमेंट में दो एफर्ट्स काम करते हैं। फर्स्ट एफर्ट रहता है स्पर्म का सेल्फ एफर्ट्स, स्पर्म एफर्ट्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, एंड सेकंड इज यूट्रस एफर्ट्स। एक तो स्पर्म जो है वो खुद क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, उसका खुद का एफर्ट्स होता है, और सेकंड जो है वो यूट्रस क्या करता है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज अराइवल ऑफ स्पर्म। फर्स्ट पॉइंट, मेल पार्टनर with the help of penis release the sperm in vagina, of female near cervix during the process of intercourse mating or coitus। After this sperm move with the help of two efforts। इसके बाद जो है वो स्पर्म टू एफर्ट्स की हेल्प से मूव करेगा। फर्स्ट जो एफर्ट्स रहेगा वो स्पर्म एफर्ट रहेगा और सेकंड जो एफर्ट्स रहेगा वो यूट्रस एफर्ट्स। ओके, सो आफ्टर दिस स्पर्म मूव with the help of two efforts। First effort is sperm efforts and second effort is uterus efforts। With the help of two efforts, first is sperm efforts, and second is uterus efforts। First is sperm efforts and second is uterus efforts। Again, first sperm efforts, in this sperm move with the help of tail, and tail show a movement with the help of undulating movement। Okay, and a sperm can swim or can travel a distance 1.5 to 3 mm per minute। 1.5 से लेके 3 mm तक जो है एक जो स्पर्म है वो ट्रेवल करता है। ओके,
So first of all, sperm efforts. A sperm can swim 1.5 to 3 mm distance, 1.5 to 3 mm distance per minute. 1 मिनट में जो स्पर्म जो है डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कवर करता है 1.5 टू 3 mm डिस्टेंस, 1.5 टू 3 mm डिस्टेंस, मतलब 1 मिनट में जो है वो स्पर्म इतना जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेता है. ओके, आफ्टर दिस सेकेंड वन इज यूटरस एफर्ट्स. सेकेंड वन इज यूटरस एफर्ट्स. यूट्रस भी जो है वो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है. यूट्रस, जैसे यूट्रस जो है, यूट्रस में जो वेजाइना है उसका एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है सर्विक्स तक. वेजाइना जो है सर्विक्स को कवर करके रखता है और इस कंडीशन में जो है, और जो सर्विक्स है वो वेजाइना तक प्रेजेंट होता है. तो इस कंडीशन में जो है डायरेक्ट जो है स्पर्म वो किस में पहुंच जाते हैं, सर्विक्स में. सो एक्सटेंशन ऑफ सर्विक्स इनटू वेजाइना और एक्सटेंशन ऑफ वेजाइना इनटू सर्विक्स helps in movement of sperm directly into uterus. Okay, so in uterus efforts, extension of cervix, extension of cervix in vagina also helps in movement. Also helps in movement. एक जो स्पर्म है, ये स्पर्म जो वेजाइना में प्रेजेंट होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव में जो प्रेजेंट होता है, इसका जो लाइफ स्पेन है वो रहता है अबाउट 3 days. लाइफ स्पेन जो है वो लाइफ स्पेन रहता है 1 to 3 days. लाइफ स्पेन जो होता है, लाइफ स्पेन और सर्वाइवल पीरियड ऑफ स्पर्म इज 1 to 3 days. लगभग कितना रहता है, 1 to 3 days. बट इट कैन फर्टिलाइज द वर्म और एग फॉर 12 to 24 hours. For 12 to 24 hours. Okay, then the survival period of or lifespan of sperm is about 72 hours. 72 hours means 3 days. And it can fertilize the worm, and it can fertilize the worm in first 24 hours. Recent research is about 6 hours. अब देखते हैं कि जो मूवमेंट होता है स्पर्म का, वो जो मूवमेंट है स्पर्म का, उस मूवमेंट में 2 टाइप्स के एफर्ट्स काम करते हैं. एक तो रहता है, एक जो एफर्ट्स रहता है वो स्पर्म का एफर्ट्स रहता है. स्पर्म का जो एंडुलेटिंग मूवमेंट होता है उसकी हेल्प से स्पर्म जो है वो मूव करता है. और सेकंड जो एफर्ट्स होता है वो रहता है यूट्रस का एफर्ट्स. जैसे मैंने बताया स्पर्म जो है वो स्विम करता है किसमें, यूट्रस में. और इस कंडीशन में जो वो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो डिस्टेंस कवर करता है
1.5 to 3 mm पर मिनट। सेकंड बात करते हैं यूट्रस एफर्ट्स। इसमें क्या है कि सर्विक्स का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन ऑफ सर्विक्स इन वेजाइना ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो सर्विक्स जो है वो वेजाइना तक एक्सटेंड रहता है और इस कंडीशन में डायरेक्ट जो है स्पर्म वो किस में पहुंच जाते हैं, यूट्रस मीन्स सर्विक्स में। बात करें कि जो लाइफ स्पेन जो होता है स्पर्म का वो 3 डेज का होता है, 72 आवर्स। और ये जो है ओवम या एग को जो फर्टिलाइज कर सकता है वो फर्स्ट 24 आवर्स में क्या कर सकता है, फर्टिलाइज। रिसेंट जो स्टडी है, रिसेंट जो रिसर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर सकता है एग को और वो ड्यूरेशन रहता है 6 आवर्स। लगभग 6 आवर्स तक वो जो है उसमें कैपेसिटी रहती है इसको फर्टिलाइज करने की। ओके, देन आफ्टर दिस सेकंड पॉइंट इज, सेकंड हेडिंग इज अराइवल ऑफ एग। सेकंड हेडिंग इज अराइवल ऑफ एग। सेकंड हेडिंग इज अराइवल ऑफ एग। तो होता क्या है कि जो ओवेरी है, ओवेरी से जो सेकेंडरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte जो है, ओवेरी से जो सेकेंडरी oocyte जो है ये सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद जो है वो रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद जो है फिम्बरी उसको कलेक्ट करेगी। फिम्बरी कलेक्ट करके उसको ओविडक्ट में पहुंचाएगी। ओविडक्ट में पहुंचाने के बाद जो है ये जो स्पर्म है सेकेंडरी oocyte जो है वो पहुंचता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे। एक जो ओवम और एग है उसका भी वही होता है, लाइफ स्पेन जो लगभग 3 डेज का रहता है। लाइफ स्पेन इज अबाउट 72 आवर्स, 72 आवर्स। और ये भी जो है ये फर्टिलाइज जो है ये फर्टिलाइज होने की जो कैपेसिटी है वो लगभग वही रहती है 12 to 24 आवर्स। फर्टिलाइज होने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 12 to 24 आवर्स। फर्टिलाइज की जो कैपेसिटी रहती है वो रहती है 12 to 24 आवर्स। ओके, और लगभग जो है कई बार जो है ये कम भी हो सकती है लेकिन मोस्टली जो है ये 12 to 24 आवर्स की रहती है। ओके, देन आफ्टर दिस कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। Capacitation of sperm. What is capacitation? Capacitation is the capacity of sperm to fertilize the egg or ovum. एग और ओवम को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। स्पर्म के द्वारा ओवम या एग को जो फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। होता क्या है कि जैसे ही स्पर्म जो है वो वेजाइना में रिलीज होगा, यूट्रस में पहुंचेगा, तो इसके ऊपर जो है सरफेस, स्पर्म की सरफेस जो होती है इसके उस ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स जो है वो रिमूव किए जाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन का जो प्रोसेस होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। ओके, सो व्हाट इज कैपेसिटेशन? द कैपेसिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज the capacity of sperm to fertilize the egg is known as, the capacity of sperm to fertilize the egg is known as capacitation. Is known as capacitation. Okay, next point. The process of capacitation takes place with the help of some molecules.
with the help of some molecules which are present on the surface of sperm. So capacitation during this process some chemicals which are present on surface of sperm are removed. कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्म की सरफेस पे, उन केमिकल्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस उसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटेशन। जैसे वो केमिकल्स रिमूव हो जाते हैं तो स्पर्म में कैपेसिटी आ जाती है उसको जो है फर्टिलाइज करने की, ओवम और एग को फर्टिलाइज करने की। ओके, देन आफ्टर दिस नेक्स्ट हेडिंग इज सम केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। Next heading some chemical and physical events or reactions during fertilization. Next heading is fourth heading, chemical and physical events during fertilization. Some chemical and physical events during fertilization. Okay, and first heading in this, अब होता क्या, फर्टिलाइजेशन के टाइम जो है कुछ केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, और ये फिजिकल्स और जो केमिकल रिएक्शंस जो हैं इनमें फर्स्ट जो रिएक्शन है वो एक्रोसोमल रिएक्शन। फर्स्ट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। अब होता क्या है कि जैसे ही जो स्पर्म है वो वेजाइना के अंदर एंटर करता है और यूट्रस में पहुंचेगा, यूट्रस में पहुंचने के बाद जो है और उधर से जो ओवम और एग है ये मूव करेगा, और मूव करने के बाद फिर किस में पहुंचेगा? ओविडक्ट में पहुंचेगा। उधर से स्पर्म भी किस में पहुंचेगा? ओविडक्ट में पहुंचेगा। तो उनके बीच कुछ रिएक्शंस होती है और उन रिएक्शंस में जो हेल्प करता है वो एक्रोसोम हेल्प करता है, और इस टाइप की जो रिएक्शंस है उनको बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शंस। अब होता क्या है कि जैसे ही ये जो स्पर्म है और ओवम और एग है, तो ओवम और एग पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। लेयर का नाम क्या रहता है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो है वो 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, और उनमें से एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है उसका नाम है ZP3। उस एक ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है? ZP3, जोना पेलुसिडा थर्ड। 3 जो है ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहती है किसकी सरफेस पे? जोना पेलुसिडा की सरफेस पे। उनमें से एक जो है उसका नाम है ZP3। ये जो ZP3 प्रोटीन है वो रिसेप्टर का काम करती है। किसका काम करेगी? रिसेप्टर का। और ये जो प्रोटीन है ये रिसेप्टर का काम करेगी और ये स्पर्म के साथ बाइंड होगी। ये जो प्रोटीन है जोना पेलुसिडा ये रिसेप्टर का काम करेगी, और रिसेप्टर का काम करने से ये जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल जो है स्पर्म की जो सरफेस पे प्रेजेंट होगा उसके साथ ये बाइंड हो जाएगी। ओके, सो ZP3, what is ZP3? It is a one of 3 glycoprotein present, one of 3 glycoprotein present on the surface of ovum or egg।
surface of egg and act as a receptor, bind with complementary molecule, present at the surface of sperm, ओके। तो ये जो है ZP3 जो एक रिसेप्टर का काम करती है, एक प्रोटीन होती है जोना पेलुसिडा, जो 3 लेयर की बनी हुई होती है, 3 ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। उसमें से एक ये प्रोटीन है जिसका नाम रहता है जोना पेलुसिडा थर्ड, और ये जोना पेलुसिडा जो थर्ड जो है वो रिसेप्टर का काम करेगी, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगी। वो कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होता है किसके सरफेस पे, ओवम और एग के सरफेस पे। अब बाइंडिंग के बाद होता क्या है कि कुछ एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। वो स्पर्म लाइसिन जो वो रिलीज होते हैं। देन आफ्टर दिस some enzymes which are present in acrosome are released, known as sperm lysine, तो एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है और स्पर्म लाइसिन में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सम ऑफ देम आर फॉलोइंग। सो आफ्टर दिस स्पर्म लाइसिन contain after this sperm lysine contain a corona penetrating enzyme, third there are 3 types of enzymes present in sperm lysine. These are, first one is hyaluronidase. Hyaluronidase dissolve the hyaluronic acid present between the follicular cells. follicular cells के बीच में जो hyaluronic acid होता है, उस hyaluronic acid को डिजोल्व करने का काम कौन करेगा? hyaluronidase. This dissolve the hyaluronic acid present between the cells of फॉलिकुलर सेल्स के बीच में जो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है उसको डिजोल्व करने का काम कौन करेगा? हाइल्यूरोनिडेज.
Second is corona penetrating enzyme. Corona penetrating enzyme dissolve the corona radiata. It dissolve the corona radiata. It dissolve the corona radiata. ये क्या करता है? कोरोना रेडिएटा को डिजोल्व करने का काम करेगा. थर्ड, जोनालाइसिन और एक्रोसिन. It dissolve the जोना पेलुसिडा. ये जोना पेलुसिडा को डिजोल्व करने का काम करेगा. It dissolve the जोना पेलुसिडा. It dissolve the जोना पेलुसिडा. ओके, तो ये जो है जोना पेलुसिडा को जो है डिजोल्व करने का काम करेगा. ओके, अगेन दोबारा देख लो फिर से. हाइल्यूरोनिडेज जो है, हाइल्यूरोनिडेज ये क्या करता है कि हाइल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है फॉलिकुलर सेल्स के बीच में, और उन हाइल्यूरोनिक एसिड को जो है डिजोल्व करने का ये काम करता है. इसके बाद जो है सेकंड, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है ये कोरोना रेडिएटा जो लेयर होती है उस कोरोना रेडिएटा लेयर को जो है ये डिजोल्व करने का काम करेगा. थर्ड जो रहता है ये जोनालाइसिन और एक्रोसिन जो है ये जोना पेलुसिडा को जो है डिजोल्व करने का काम करेगा. तो जैसे ही ये एक्रोसोम जो है ये एंजाइम रिलीज़ करता है, रिलीज़ करने के बाद जो है स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अटैच हो जाता है. ठीक है, स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, और अटैच होने के बाद जो है जैसे ही वो अटैच होता है, अटैच होने के बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ओवम और एग की, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पोलरिटी है वो पोलरिटी है वो चेंज हो जाता है और वो डीपोलराइज्ड कंडीशन में आ जाता है. जैसे ही एक जो स्पर्म है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होती है, बाइंड होते ही जो है जैसे ही बाइंड होते ही ओवम या एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाती है, और जैसे ही वो डीपोलराइज होती है, डीपोलराइज होते ही एक्स्ट्रा जो स्पर्म है उसकी एंट्री रुक जाती है. ठीक है, तो जैसे ही ये डीपोलराइज होगी, डीपोलराइज होते ही इसके बाद होगा क्या कि ये जो है आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन sperm plasma membrane fuse with the egg plasma membrane. In this condition, egg plasma membrane start to depolarize. In this condition, egg plasma membrane start to depolarize, which prevent the entry of extra sperm.
extra sperm, polyspermy. Okay, then after this second point is cortical reaction. After acrosomal reaction, next is a cortical reaction. Cortical reaction B. Cortical reaction. After this, the cortical granules which are present beneath the plasma membrane of ovum or egg, these cortical granules release and make the hardened zona pellucida. कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था ओवम और एग के स्ट्रक्चर में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स जो हैं ये रिलीज होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा जो है उसके बीच में एक हार्डन लेयर बना देते हैं जो एक्स्ट्रा स्पर्म की एंट्री को रोकता है. ओके, सो cortical granules which are present, in ovum or egg, cortical granules which are present in ovum or egg, near plasma membrane, release between plasma membrane and zona pellucida, make it hard, which prevent the entry of extra sperm, means polyembryony. तो ये क्या करता है कि जो कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स हैं, ये कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स जो हैं, जैसे ही कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो है रिलीज किसके बीच में होंगे, जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, और एक इसको हार्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जो क्या करता है कि जो स्पर्म की जो एक्स्ट्रा एंट्री है उसको प्रिवेंट करता है. ओके, देन आफ्टर दिस नेक्स्ट इज स्पर्म एंट्री. After this next heading is third point of chemical or physical reaction events is sperm entry. After this sperm enter in secondary oocyte, okay, up to middle piece or sometime complete sperm. ठीक है, तो कभी कभी तो अप टू मिडल पीस तक जो है ये अंदर एंटर कर जाता है और कभी कभी जो है कंप्लीट जो स्पर्म है वो जो है उसके अंदर एंटर करेगा सेकेंडरी oocyte के अंदर. ओके, आफ्टर दिस sperm enter in secondary oocyte. After this sperm enter in secondary oocyte.
Next heading or fourth point is fourth point of chemical or physical events is the karyogamy. Okay, fourth point is the karyogamy. Okay, after this next point is the karyogamy. 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 After some time, the middle piece and tail become removed from the sperm and head act as a pronucleus, male pronucleus. उस टाइम के बाद जो है वो टेल और मिडल पीस जो है वो रिमूव हो जाएंगे स्पर्म के, और जो हेड है वो काम करेगा मेल प्रोन्यूक्लियस का। जैसे स्पर्म अंदर एंटर करता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, एंटर करने के बाद जो सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होके जो है एक सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा और साथ में एक ओवम और एग बनाएगा। ओवम और एग का जो न्यूक्लियस है वो काम करेगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस की तरह, और उधर जो हेड का न्यूक्लियस है वो काम करेगा मेल प्रोन्यूक्लियस की तरह। दोनों के बीच में जो है दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी, और दूसरा नाम है एम्फीमिक्सिस। कैरियोगेमी भी बोल सकते हैं, और दूसरा नाम जो रहता है वो रहता है एम्फीमिक्सिस, ऑल्सो नोन एज कैरियोगेमी एंड एम्फीमिक्सिस। ओके, देन आफ्टर दिस, after entry of sperm, after entry of sperm, after entry of sperm in secondary oocyte, then it divide by, then it complete their, then it complete their then it complete their meiosis second, then it complete their meiosis second and produce one egg and a polar body. Middle piece and tail of sperm separate and head act as a female pronucleus. The nucleus of worm or egg act as a female pronucleus. Okay, then there is fusion of male pronucleus with female pronucleus, and process is known as karyogamy. Okay, then fusion of, then the process of fusion of, then the process of
fusion of male pronucleus with female pronucleus is known as karyogamy. Okay, karyo means nucleus and gamy means fusion. So karyogamy is the fusion of nucleus. Okay, then after this remaining portion of steps of fertilization and after development of zygote we shall discuss about in next lecture.